Okay, so let's start with the question. We have three processes: process X, process Y, and process Z. In the question itself, you can see how the question starts. Question starts with the input. Okay, how much input it is? It is 15,000. Input of what? Input of material. Okay, it is 15,000 in kg, and it says cost of raw material per unit or per kg, whatever it is, per unit it is 40. So now per unit is given, so multiply कर लो आप, you will get cost. ठीक है, 40 से multiply किया है नहीं, 15 से कर दिया है, 40 था ना, yes, 15,000 into 40, you will get the input cost. Now below this you will write this labor, this expenses, and last one is again manufacturing expenses. Correct, this was direct expenses. And first one was direct labor. Okay, obviously this is input of material. Okay, now the way it is given in the question, you will copy and paste. How much is the direct labor? It is 3,60,000. How much is the direct expenses? 30% of direct wages. So it says you calculate 30% of direct wages. Got it? Any doubt? 3,60,000 ka 30%. Correct? Okay. Manufacturing expenses is directly given. Manufacturing expenses 154,500. Any doubt? Any question till here? यहां तक के कोई डाउट क्वेश्चन है? Can you all hear me properly? Okay. Either the answer can be yes or no. I think typing yes or no doesn't take any time. Okay. If you do not have any doubt, you can say no. है ना? इतना तो कर सकते हैं आप. Efforts आप नहीं ले रहे हैं, efforts मैं ले रहा हूँ. आप तो mute करके छोड़ देते हैं, है ना? So आपको इतना efforts लेना है. You have to be active. Okay. Like always, here it will be normal loss, है ना? हमेशा जैसे normal loss आता है वैसे आएगा. There will be calculation also, और हम लोग को पता है normal loss किस पे calculate होता है? Input पे. कितना है normal loss? Question में देखना है. Normal loss is 5%. ठीक है. We also have scrap value over here, so we will take that also, so that we can get the amount. Okay, first part is to calculate unit. Oh, क्या हुआ? It is going to be 750, and this amount going to be into 15, that is 11,240. Okay, Parveen, Banita, very good. ठीक है, सेम है, कोई नया अभी तक के कुछ बताया नहीं है मैंने. Now there should be normal output first. पहले हम पता करेंगे normal output कितना होना चाहिए. अगर 15,000 मैंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है,
जिसमें से लॉस होना है 750 का। तो बताओ आप मुझे कि नॉर्मल आउटपुट कितना होगा। नॉर्मल आउटपुट is equal to 15,000 minus 750 which is equal to 14 to 50. Is this correct? करेक्ट है। ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। ओके, नॉर्मल आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ओके ओके, सो दिस इज आवर नॉर्मल आउटपुट। मुझे बताइए आप क्वेश्चन में कि आउटपुट कितना है पहले प्रोसेस में, इट इज 14,000। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कितना आना चाहिए 14,250, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्चुअली में कितना आया 14,000। मुझे बताइए आप कि गेन है या लॉस है। मैं सोच रहा था ओके लॉस है, एंड लॉस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड बाय abnormal loss. Correct, abnormal loss. How to calculate abnormal loss? It is expected output minus actual output, that is 250. Correct, very good. Sorry, यूनिट था। ओके, इसका वैल्यूएशन तो हम लोग कॉस्ट आने के बाद ही कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके वेरी गुड। हु इज देयर, मुस्कान इज देयर, परवीन इज देयर, ओके, Banita is also there. So the same girls are there. Very good. ठीक है, एंड ये तो हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस, उसका वैल्यूएशन तो कॉस्ट आने के बाद पता चलेगा। बट यहां पर आप देखेंगे तो आउटपुट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस 60%, आउटपुट इज सोल्ड 40%. They are talking about actual output. Okay, so by process Y, because ये process Y में जाएगा, by transfer to process Y by sale of output या by output sold. Okay, now we will see if actual output is 14,000 जिसका 60% क्या होना है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, और जिसका 40% कहां पे होना है, सेल हो जाना है। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए, और कितना आ रहा है आपका सोल्ड करने के लिए, 5,600. ओके, मुस्कान, परवीन, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। सो इन तीनों का वैल्यूएशन अभी भी बाकी है, एंड यू नो हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट भी आपको निकालने आना चाहिए, आ गया होगा अब तक के, है ना। सेम मेथड से वेटेड एवरेज कॉस्ट भी निकालते हैं। पहले पूरा अमाउंट ऊपर ले लेंगे डेबिट साइड का, दैट इज 6 लाख प्लस 3,60,000 प्लस
1,08,000 प्लस 154,500 एंड माइनस करेंगे यहाँ से नॉर्मल लॉस का अमाउंट 11,250। ठीक है, नीचे 15,000 यूनिट वाला और ये यूनिट में से इस यूनिट को माइनस कर देंगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे और कुछ नहीं। एंड नाउ वी विल चेक कि हमारा क्या आंसर आता है और नीचे क्या आंसर आता है वो भी हम चेक कर लेंगे। ये तो हमें मालूम है फिर भी। ठीक है, so we have in fact got the answer also। इसको इससे डिवाइड करने पे we have got 85। ठीक है, खान फरहीन, खान मुस्कान एंड परवीन, फरहीन एंड परवीन एंड मुस्कान, गुड। बनीता, वेरी गुड। ठीक है, ओके। एंड नाउ वी विल वैल्यू ऑल दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट। तो सबसे 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी कॉस्ट है, आपको सबको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आउटपुट सेल के लिए तो बेटा दिया हुआ है ना, आउटपुट सेल के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज 94, तो 94 में आप सेल करेंगे। ठीक है, टैली नहीं होगा, टैली नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन कि टैली नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर 85 नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे कितना लिया, 94 लिया है। मुझे बताओ, अगर किसी की कॉस्ट 85 हो और सेल 94 में हुआ हो तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर किसी की कॉस्ट 85 है और उसका सेलिंग प्राइस 94 है, सो देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस? टेल मी। अगर कॉस्ट 85 है, सेल 94 में हुआ है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप बता सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है? अगर मैंने 85 की कॉस्ट की चीज 94 में सेल किया है तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा मुझे? 9 रुपीज का। वेरी गुड। सो 5600 जो यूनिट सोल्ड किया है हमने, उसके ऊपर 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया हम लोगों को। नाउ इट इज गोइंग टू टैली। ठीक है, अब ये टैली हो जाएगा। क्या हुआ इशू? लिखा है ना सब कुछ? इट सेज 50,400 सर डेबिट। 15 नहीं समझा मुझे, क्या गलती हो गया? ये टैली क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अमाउंट नहीं लिखे आप। कौन सा अमाउंट नहीं लिखा मैंने? विच अमाउंट आई लेफ्ट? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया यहाँ पर। सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी। हमने 5600 मल्टीप्लाई बाय 9 जो होना था वो हमने गलत लिखा। ओके, इज दिस करेक्ट नाउ? कॉस्ट प्रॉफिट 50,000। ओके, बुरोनकर हाजरा, परवीन, मुस्कान,
फरहीन वेरी गुड, मुस्कान वेरी गुड। अब तो तुम लोग मेरी गलती भी निकालने लगे, अब तो तुम लोग सीख गए एकदम से, ठीक है, ओके। क्या हो गया, आवाज किस चीज की आ रही है? ओके, 111 की आवाज आ रही है, ओके। So now it is perfectly fine, process X is over now, ठीक है। Now the same thing, will happen with the process Y also. So if you have understood the process X, then process Y is the same. सबसे पहले यहाँ पर आएगा material from to transfer from process X, है ना। पूरा सेल नहीं हुआ था, कुछ तो यहाँ पे ट्रांसफर भी हुआ था। कितना ट्रांसफर हुआ था? ट्रांसफर टू Y was 8400, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब X से कितना आ रहा है? 8400 जो था वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप पूरा यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं ये पूरा, और यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देख देख के आप क्या करेंगे, लिख लीजिए। Y में इनपुट है 4600 का, और उसका रेट भी दिया हुआ है 48, तो मैंने मालूम कर दिया। लेबर प्रोसेस Y का 3,20,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस बार बोल रहा है वो लेबर का 40% चाहिए, तो मैं लेबर का 40% निकाल देता हूँ, दैट इज 3,20,000 का 40%, दैट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग इज 112,720, okay, this much is over. Now going to the right side, first we will write normal loss, the same process, okay. Normal loss will be calculated on the input, input means ये दोनों को मिलाकर input बनेगा आपका, तो 8,400 plus 4,600, so whatever is your answer will be your input, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करें, एंड नॉर्मल लॉस का परसेंटेज इज 8%, ठीक है। और अमाउंट मालूम करने के लिए स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम लोग, स्क्रैप वैल्यू 35, ठीक है। सो पहले मैं यूनिट मालूम कर रहा हूँ, सो इट इज 1040, और अमाउंट मालूम करना है तो पूरा ले लिया, ठीक है। सो इट इज 36,400, वेरी गुड परवीन, ओके। सो इनपुट ध्यान से, यहाँ पे 2 इनपुट होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये चीज समझाया था, जब 2 इनपुट है तो दोनों इनपुट को लेना है, ठीक है, उसके ऊपर ही कैलकुलेट करना है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, और अमाउंट जो भी आएगा वो आपको यूनिट में लिख देना है। दिस इज नॉट केजी, दिस इज यूनिट, ठीक है। इट इज नॉट क्लियरली मेंशन एनीवेयर ना, तो केजी में है कि क्या, यूनिट दिया, यूनिट लिख दो, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं पता करूंगा नॉर्मल आउटपुट, जैसे कि हम हमेशा पता करते हैं, और नॉर्मल आउटपुट आपको पता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। कितना आ जाता है नॉर्मल आउटपुट आपका, कितना आएगा नॉर्मल आउटपुट? बोलो, नॉर्मल आउटपुट 11,960 आ रहा है, ओके। 11,960 आपके बोलने पे मैं लिख देता हूँ, ओके। ये है आपका नॉर्मल आउटपुट।
आप मुझे क्वेश्चन में से देखकर बताओ कि क्या आपको इतना ही आउटपुट आया है क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन इज सेइंग कि 12,000, मतलब ज्यादा है एक्चुअल आउटपुट आपका। ज्यादा है मतलब क्या है, आपको गेन हुआ है, और गेन हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट साइड में। कितने का गेन हो गया आपको, आपने एक्सपेक्ट किया था 11,960, एक्चुअल आ गया आपका 12,000। दैट मीन्स यू गॉट अ गेन ऑफ 40 यूनिट्स का गेन आपको हो गया, करेक्ट। इसका अमाउंट तो आपको पता है, जब तक कि वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक कि हम लोग को इधर पे प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसका वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये पार्ट लिख लेते हैं। वन इज आउटपुट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 50% एंड आउटपुट सेल इज 50%। तो दोनों का जो यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा 12,000 है, उसका 50%, और सेम यहाँ पे भी सेम रहेगा, एंड ये ट्रांसफर टू प्रोसेस Z होगा, ठीक है। सो 50% मीन्स 6,000 यहाँ पर जाएगा और 6,000 यहाँ पर जाएगा, बराबर। ओके, वेरी गुड परवीन, ईरम, गुड, ठीक है। ओके, इसको मालूम कर, इसका तो अपन को पता है, आउटपुट सोल्ड के लिए दिया होता है क्वेश्चन में, कितने पे सेल हुआ है वो दिया होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 118 है यहाँ, ठीक है। तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी ये दोनों के लिए देख रहे हो आप, ये ब्लैंक है, और आउटपुट कभी भी वेटेड एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होता है, सेम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी उसी पे वैल्यू होता है, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है निकालना पड़ेगा। अमाउंट में आप देख सकते हैं 7,14,000 प्लस 2,20,800 प्लस 3,20,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,12,720 माइनस आप यहाँ से करेंगे नॉर्मल लॉस को तो 36,400, ठीक है। एंड यूनिट में आप देखेंगे तो 8,400 प्लस 4,600 आपके डेबिट साइड में है, और माइनस करेंगे 1,040, ठीक है। तो ऊपर डेबिट में यू विल गेट एंड क्रेडिट में यू विल गेट डिनोमिनेटर में, इज इट कमिंग इन डेसिमल। मुस्कान का 122 आया, तो मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। ओके, लोग का 120 आ रहा है, सो आई हैव मेड सम मिस्टेक ना, विच यहाँ पे 714 22,800 3,20 1,28, ठीक है। 11, अच्छा यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, 2 नहीं डाला है, ठीक है। Okay, it is coming to 122 now. Okay, correct. चैट बॉक्स में जाता हूं मैं, yes 122 is the correct answer, मुस्कान एंड परवीन। तो 122 आप यूज करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एंड इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। ओके, रही बात इसके प्रॉफिट की, तो मुझे बताओ अगर कॉस्ट 122 है और आपने सेल 118 में किया है, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस।
अगर कॉस्ट उसकी 122 है एंड यस मुस्कान यू आर करेक्ट, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया बेटा? 4 पर यूनिट का लॉस हो गया आपको। वेरी गुड, 4 पर यूनिट का आपको लॉस हो गया है ना, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हुआ है आपको? सेल किया था आपने 6000 यूनिट और हर यूनिट पे आपको लॉस हुआ 4 रुपीज का। दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है, ओ गलत हो गया, 24,000 का लॉस हो गया आपको, है ना। ओके, नाउ आप टैली करेंगे, इट विल गेट टैली। सब अपना रोल नंबर प्रॉपरली लिख लो ताकि मैं आपका अटेंडेंस फटाफट मार्क कर लूं। 8 मिनट बाकी है, ठीक है। प्रोसेस जेड आपको एज यूजुअल आपको करना है, मैं नहीं करूंगा प्रोसेस जेड। चैट बॉक्स में कुछ है? नो, नथिंग इज देयर इन द चैट बॉक्स। आप लोग प्रॉपरली अपने आप को 3 डिजिट रोल नंबर से वैल्यू कर लो। So it's time to mark attendance. I have added some lectures in GST और आज मैं कॉस्टिंग के लिए भी आपको वो शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। So in the same playlist you can get all your lectures, recorded lectures. GST के मैंने 2 आज ऐड किए, टाइम ऑफ सप्लाई की। वेरी गुड मुस्कान फरहीन, वेरी वेरी गुड बेटा। मुस्कान ने बोला कि प्रोसेस जेड कंप्लीट हो गया, वाओ दैट्स वेरी गुड। 10 o'clock lecture, direct and indirect, that's good. Okay, okay, so who have not done it properly? Many of the students have not renamed themselves properly. Alfia, Kishan, Prajapati. Why there is always a requirement to say everything? You have to properly value yourself. No? 3 digit roll number अपने नाम से पहले आपको लिख लेना है। वेरी सिंपल इट इज। अभी जाओ पार्टिसिपेंट के नाम पे प्रेस करके रखो, रीनेम का ऑप्शन आएगा और 3 डिजिट रोल नंबर पहले, नॉट बाद में। अल्फिया, किशन, मीनू, मोहतशीम, उमेरा, विशाली, ठीक है, डू इट। अदरवाइज आपको अटेंडेंस अभी लास्ट में मिलेगी, वो भी अगर आपने रोल नंबर लिखा होगा तो। ओके, रोल नंबर 3 इज देयर, रोल नंबर 11 and 13 is there, roll number 16 is there, 22, 28 is there, 33, 35, 38 is there, 33, 35, 38 is there, 42 is there, 51, 52 is there, 67 is there, 74, 75 is there,
जिसका मिस हो रहा है उनका शायद एंड में आएगा, तो आप लोग एंड तक के वेट करेंगे, उससे पहले चैट बॉक्स और ध्यान से सुनेंगे अपना रोल नंबर. ओके, रोल नंबर 85 इज देयर, 89 is there, 94, 95 is there, 94, 95, 99, 100, 99 and 100, 102, 3, 110, 116, 17, 18 is also there, or 116, 117, 118, फिर 123 direct, 123. Then we have 136, 138, 139. 136, 138 and 9. And 141 is also there, 145 is also there. 141, 145. 169 is there and 170. Okay, 169 and 170 both are there. 171 is there, 176, 189, then 194 and 198. ओके, अभी जिसमें कौन बचा है उसको अभी अटेंडेंस मिलेगी. रोल नंबर 66, 66 is present. Roll number 143 is present. Okay. Roll number 157 is present. Then roll number 164 is present. Okay. Now what is there in the chat box? Sir, 109. Okay, 109. 109. Okay. Done. 141. मैंने मार्क किया है 141 ना. Okay, 141 is present. 164 भी हो गया. 48 भी मैंने मार्क किया है, मुझे आइडिया है. 48 नहीं, किशन मार्क नहीं हुआ था. फिर कैन लीव, यस यस, जिसका हो गया वो लोग लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. 28, 66 है, 139, फिर वापस से 48 दिया, नहीं पा सकते. 139 सब प्रेजेंट तो हैं, फिर भी लिखते हैं. 139 is also present. 75 is there, 28 is there, सब तो है present. Still you will put it in the chat box. You will not listen carefully and उसके बाद आप लोग ये सब करते हैं. Okay, I am going to end the lecture now. जीरो 6 मार्क कर लिया आपको. चलो एंड कर रहा हूँ मैं. आंसर आपको मिल जाएगा, आपको उसका प्रोसेस जेड कंप्लीट करना. ओके, ग्रेट, बाय.